اس ویڈیو میں ہم فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں بات کریں گے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا موجود ہو تو اس کلمے کو کہیں گے کہ یہ فعل ہے، کوئی بھی کام ہے۔ وہ کام کیا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے یا کام سہا جا رہا ہے، یعنی برداشت کیا جا رہا ہے۔ مثالیں دیکھیے، ہاتھی لڑ رہا تھا۔ اب یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ لڑ رہا تھا، یعنی لڑنا یہاں پہ کام ہے۔ تو اس جملے میں لڑنا کام ہے اور یہ کام کرنا کی مثال ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس جملے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ طلوع ہوتا کام ہے۔ تو یہاں ہونا کا لفظ جو ہے وہ کام میں آ جائے گا، اور یہ ہونا کی مثال کوئی بھی کام ہونا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب تیسرا جملہ دیکھتے ہیں، امی جان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو امی جان کے سر میں درد ہونا ایک کام ہے جو وہ سہ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں۔ تو درد ہو رہا ہے سہنا کی مثال ہو گئی۔ کوئی کام سہنا یا برداشت کرنا، یہاں پہ درد ہونا ایک کام ہے جو برداشت کیا جا رہا ہے یا سہا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجود ہو، برداشت کرنا۔ سہنا کا مطلب ہم نے جانا کہ برداشت کرنا، اور 3 جملوں سے بھی ہم اس بات کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں فاعل کے بارے میں۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ پہلے تو ہم نے فعل کے بارے میں جانا ہے نا کہ فعل کوئی بھی کام کیا جائے، ہو رہا ہو یا سہا جا رہا ہو، برداشت کیا جا رہا ہو، تو جو کام کرنے والا ہوگا اسے کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ اب وہ کام کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جملہ ہے ہاتھی لڑ رہا تھا۔ اب یہاں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ لڑ رہا تھا ایک کام ہو رہا ہے، ایک فعل ہے جس کے بارے میں ہم نے اوپر بات کر لی ہے۔ اب کون یہ کام کر رہا ہے؟ ہاتھی یہ کام کر رہا ہے، بالکل صحیح۔ تو ہاتھی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا۔ کام کرنے والا ہاتھی ہے اور وہ کام کر رہا ہے لڑائی۔ تو یہ ایک جانور کی مثال ہو گئی کہ ہاتھی ایک جانور ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمیں پتا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے؟ طلوع ہونا، بالکل صحیح۔ طلوع ہوتا ہے، ایک کام ہو رہا ہے، اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ تو سورج۔ تو سورج فاعل ہے، اور سورج ایک چیز کی مثال ہو گئی کہ فاعل میں کام کرنے والے میں چیز بھی ہو سکتی ہے، جانور بھی، شخص بھی۔ تو ہم نے جانور اور چیز کے بارے میں بات کر لی کہ جانور جیسے ہاتھی کوئی کام کر رہا ہے، کام کرنے والا ہاتھی ہے، اور یہاں کام کرنے والی چیز کیا ہے؟ سورج، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج ایک چیز ہے، تو فاعل سورج ہوگا۔ اب تیسرے جملے کی طرف آ جائیں، امی جان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب یہاں درد ہونا ایک کام جو برداشت کیا جا رہا ہے، سہا جا رہا ہے، جو کہ فعل ہے، اور کام کون کر رہا ہے؟ کون یہ درد برداشت کر رہا ہے؟ امی جان، بالکل صحیح۔ تو امی جان یہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، بالکل صحیح۔ تو چلیں فاعل کا ہم یہاں نشان بنا دیتے ہیں کہ یہ امی جان کا لفظ جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا، یہاں امی جان ہے، فاعل ہے۔ اور یہ کس کی مثال ہوگی؟ شخص کی۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے وہ ہے مفعول۔ فعل اور فاعل کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب باری ہے مفعول کی۔ اور مفعول جس چیز پر کام کیا جائے۔ ہم نے جانا ہے کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول کہا جاتا ہے جس چیز پر کام کیا جائے، جس شخص پر کام کیا جائے، تو وہ ہوگا مفعول۔
इस बात को हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। हाथी शेर से लड़ रहा था। अब यहाँ हाथी क्या है? फाइल है, बिल्कुल सही। और लड़ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? काम हो रहा है, तो ये फेल है। तो चले यहाँ लिख देते हैं। तो इस जुमले में हाथी लड़ रहा था, तो हाथी क्या हो गया? फाइल के हाथी ने ये काम किया, और काम क्या किया? लड़ाई की। तो काम लड़ना हो गया। अब वो किस से लड़ रहा है? शेर से। तो यहाँ पे शेर जो है वो एक ऐसा जानवर है जिससे हाथी ने लड़ाई की। यहाँ शेर मफूल हो जाएगा, जिस पर ये काम हो रहा है, जिससे लड़ाई की जा रही है, शेर से लड़ाई हो रही है, तो ये मफूल हो गया। अब अगला जुमला देखें, सूरज मशरिक से तुलू होता है। अगर मैं कहती हूँ सूरज तुलू होता है, तो सूरज क्या होगा? फाइल होगा, बिल्कुल सही। और तुलू होता है फेल। चले यहाँ लिख देते हैं कि सूरज फेल है और तुलू होना, माफ कीजिएगा, सूरज फाइल है और तुलू होना फेल है। अब इस जुमले में हमने ये देखा कि सूरज फाइल है और तुलू होना फेल है। इन दो बातों का हमें यहाँ पर पता चल गया। अब वो कहाँ से तुलू हो रहा है? सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, तो मशरिक क्या होगा? मशरिक होगा मफूल, कि मशरिक से ये काम हो रहा है, मशरिक से सूरज तुलू हो रहा है। सूरज ने ये काम किया तुलू होने का, तो सूरज फाइल हो गया और तुलू होना फेल हो गया। और वो कहाँ से तुलू हुआ? मशरिक से, तो मफूल हो गया। मशरिक का लफ्ज मफूल हो गया। चले अब तीसरे जुमले से भी इस बात को देख लेते हैं। अम्मी जान के सर में दर्द हो रहा है। अब पहले हमने जुमला देखा था अम्मी जान के सर में दर्द हो रहा है, तो उसमें अम्मी जान क्या था? फाइल था, बिल्कुल सही। और बताएं दर्द हो रहा है क्या है? फेल है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि अम्मी जान फाइल है और दर्द हो रहा है फेल है। हमें इस दोनों चीजों के बारे में यहाँ पता चल गया। अब किस चीज में दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है, तो सर का लफ्ज क्या होगा? मफूल होगा, बिल्कुल सही। तो चलें यहाँ हम ये निशान लगा देते हैं कि ये सर का लफ्ज जो है मफूल है, क्योंकि इस चीज़ पर काम हो रहा है। सर ये दर्द बर्दाश्त कर रहा है, अम्मी जान के सर में दर्द हो रहा है। तो हमें इस जुमले में भी पता चल गया कि सर का लफ्ज मफूल होगा। इसी तरह पहले दो जुमलों में शेर मफूल है क्योंकि शेर से लड़ाई हो रही है, और मशरिक मफूल है क्योंकि मशरिक से सूरज तुलू हो रहा है। तो अब आप इन तीनों जुमलों में देख रहे होंगे कि पहले जुमले में से, दूसरे जुमले में से, और तीसरे जुमले में के और में के जो अल्फाज हैं इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। ये होते हैं हर्फ। इन अल्फाज को हर्फ कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और ये अल्फाज किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर आप इतना जान लें, आपके लिए यही ज़रूरी है। तो हमने फेल, फाइल और मफूल के बारे में बात कर ली। अब हम एक जुमले से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, मैंने यहाँ एक जुमला लिखा है, शिकारी ने परिंदे को पकड़ लिया। अब इस जुमले को आपने गौर से देखना है और मुझे बताना है कि इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है और मफूल क्या है। तो सोचें और बताएं कि सबसे पहले जो फेल लिखा है वो इस जुमले में कहाँ पे मौजूद है, कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसे हम कहेंगे कि ये फेल है। पकड़ लिया, बिल्कुल सही, पकड़ लिया। यहाँ पर फेल है, पकड़ना फेल होगा। तो इस जुमले में हमें पता चल गया कि पकड़ लिया फेल है या पकड़ना फेल है इस जुमले में। अब बताएं कि फाइल क्या होगा, किसने ये काम किया? शिकारी ने, बिल्कुल सही। तो शिकारी हम लिख सकते हैं ना कि ये फाइल है क्योंकि शिकारी ने ये काम किया पकड़ने का। तो फाइल के कॉलम में हमने शिकारी का लफ्ज लिख लिया। अब बताएं कि शिकारी ने किस चीज को पकड़ा है? परिंदे को। तो परिंदा क्या होगा? मफूल होगा क्योंकि परिंदे पर काम हो रहा है, परिंदे को पकड़ा जा रहा है। शिकारी ने परिंदे को पकड़ लिया। तो यहां हम क्या लिखेंगे?
परिंदे, बिल्कुल सही। तो इस जुमले में हमने फेल, फाइल और मफूल को ढूंढ लिया और यहाँ ने और को के अल्फाज को हम हर्फ कहते हैं जो किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलें एक और जुमले से भी हम देखते हैं कि उसमें से हम फेल, फाइल, मफूल को कैसे अलग करेंगे। जुमला क्या है? मछली पानी में तैरती है। अब आप सोचें और मुझे बताएं कि मछली का लफ्ज क्या है? फाइल है, बिल्कुल सही, क्योंकि मछली ये काम कर रही है, वो तैर रही है। और तैरना क्या होगा? तैरती है फेल है, या तैरना हम कह सकते हैं कि वो फेल है। तो चले इन दोनों बातों को हम यहाँ इनके कॉलम में लिख देते हैं। तैरती है फेल है और मछली फाइल है। तो मैंने फेल के कॉलम में लिखा तैरती है, या तैरना का लफ्ज जो है वो फेल है, काम है। और फाइल क्या है यहाँ पे? मछली। तो मछली का लफ्ज भी मैंने यहाँ फाइल के कॉलम में लिख दिया। अब देखते हैं कि मफूल क्या है। मछली किस चीज में तैर रही है, किस पर यह काम हो रहा है? पानी में ये काम हो रहा है, पानी में तैरा जा रहा है। तो पानी क्या होगा? मफूल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मफूल के कॉलम में इस लफ्ज को। तो चले लिख देते हैं। तो देखें हमने इस जुमले में से भी फेल, फाइल और मफूल को अलग अलग करके उनकी सही जगह पर लिख दिया है। तो आज हमने जाना फेल, फाइल और मफूल के बारे में। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।